ये तालियां यूं ही बजती रहे क्योंकि ये एक नाम इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है सर। प्लीज हमारी मॉडरेटर श्री सुमित राव जी, प्लीज आप भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे इस पैनल के और मेरे बहुत खास मेरे बड़े भाई परम आदरणीय डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, जो वर्तमान में एशिया शिपिंग कंपनी के कंट्री हेड हैं। एक्सपोर्ट एंड लॉजिस्टिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर इंडस्ट्री को ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय श्री सुमित राव जी से कि प्लीज आप इस टॉपिक को स्टार्ट करें प्लीज। Namaskar. First, I would like to thank everybody for their presence here. Thank you very much for coming. I'd like to take this opportunity to thank all the dignitaries present here. Special thanks to Ramesh Agarwal ji. His name is known to everybody. It doesn't need any introduction from my end, but however, Ramesh Agarwal ji is the chairman for Agarwal Packers and Movers, and he holds the name of being a symbol as far as logistics is concerned. Sir, we take pride in having you on this stage today. Shri Naveen Seth ji, I am a member myself of the SGCCI, and today when you introduced it as a different name altogether, I feel honored that I am here listening to that from your mouth. And thank you for coming here and honoring us and being part of this panel, sir. Shri Naveen Seth, Deputy Secretary from PSDCCI. I will not call it Punjab, Haryana and Delhi Chamber of Commerce anymore. Thank you very much for coming, sir. This is actually the first time that we've come across, and it's a pleasant surprise, because so far till date we have been considering it as Punjab, Haryana and Delhi. We took pride in that as well. We actually took pride in that, but we are really proud to know the change, and it's a positive change. I would also thank Dr. Pushpendra Pratap Singh ji, Country Head Asia Shipping International Transport Private Limited, for coming and gracing this occasion and being part of this panel. Guests, we are here to discuss opportunities in export and logistics, and I think this is something which is very well knit today. They are inseparable. I just believe and hope that my language, as far as the language that I am using, English, is not a handicap for anybody here. In case if it is, please do tell me. However, continuing on what I was saying, that when I talk of exports today and when I talk of logistics today, they are very well interlinked. They cannot be separated. Exports is something that the current government has been focusing on. Industry at large is focusing on. There are a lot of efforts that are going into the word export, or let's say the benefits that the country, the economy is able to get because of export. It is not limited today only to products. I think it goes beyond the tangible product. It goes to services, it goes to knowledge, and export today is a very vast subject. So my panelists today here are going to help us understand the dynamics of politics and logistics together. I would request Agarwal Sahab to start and give us some inputs on what does he feel are the benefits of this new knit of export and logistics going together. Sir. थोड़ा सा मैं दोस्ती के बारे में बताऊंगा कि समझना पड़ेगा कि दोस्ती एक्चुअली है क्या, सप्लाई चेन क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है आज के इस संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल कन्वेंशनल की। कभी भी किसी देश का हो या किसी फौज का हो या किसी कंपनी का हो, किसी व्यक्तिगत का हो,
एक टारगेट होता है हमारा कि हम वहां पहुंचे। फौज का क्या होता है कि हम दुश्मन के उस जगह पर पहुंचे, उसको जीते। फैक्ट्री का क्या होता है कि ये प्रोडक्शन हो, मेरे लास्ट माइल वाले मेरे जो कंज्यूमर है उसके पास जैसा मैंने बनाया था वैसा उसके पास पहुंचे। तो ये सबका एक टारगेट रहता है। फौज का टारगेट यदि मैं समझूं कि फौज से मैं 6-7 साल रहने का मौका मिला, वो भी उस जगह पर काम करने का मौका मिला जहाँ जनरली व्यक्ति जिंदगी भर कभी जा नहीं सकता। करगिल, क्वाइस, लेह लद्दाख, बांदीपुरा, बारामूला -28 डिग्री टेम्परेचर में करने का मौका मिला। तो वहाँ सप्लाई चेन मैंने बारीकी से देखा, जो एक टारगेट पूरा करने के लिए कितना उसका इम्पोर्टेंस है। आप मान के चलो कि एक व्यक्ति अपनी मशीन गन लेकर खड़ा हुआ है और सामने उनको पता है कि ये पीछे एक पेड़ के पीछे या एक टैंकी के पीछे एक व्यक्ति खड़ा है, उसको मेरे को मारना है, वो मेरा टारगेट है। और मारूंगा जब वो दाएं बाएं कभी टंकी से कभी लेफ्ट को आएगा कभी राइट को आएगा, तब मैं मारूंगा। अब वो आ नहीं रहा है, मगर मेरे को ये पता है इसको कभी ना कभी भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, कुछ नहीं होगी। जब भी ये कुछ होगा तो मेरा टारगेट मैंने पूरा कर दूंगा। भूख प्यास तो मेरे को भी लगेगी। अब मैं मेरा टारगेट पूरा करने के लिए मेरे साथ कौन है जो मेरा टारगेट पूरा कराएगा, वो मेरी सप्लाई चेन है। मैं जब उसको केवल मेरी एक ही पल आंख यही है कि ये थोड़ा सा भी सरके और इसको मैं भून दूं, मगर मेरे को भी भूख लगी तो मैं भूख लगते ही हमारा एक इंडिकेटर है कि लेफ्ट साइड का हैंड किया तो मेरी सप्लाई चेन का जो पीछे हिस्सा खड़ा है वो मेरा ध्यान करने वाला, उसे रोटी दे दी। राइस का काम किया, उसने पानी दे दिया। उसके पीछे क्योंकि ऐसे हम 10 लोग हैं, उनकी सप्लाई चेन कौन देख रहा है? हमारे पीछे वाला। उनके पीछे जो पिट्ठू में सप्लाई चेन कर रहे हैं उनके पीछे टप्पो लेकर खड़ा हुआ है, उनको पिट्ठू भरता है, पिट्ठू वाले हमारे को देते हैं और हम अपना टारगेट पूरा करते हैं कि प्लग नहीं करते, क्योंकि कुछ सेकंड में प्लग टपकी तो टारगेट तो गया, बाद में बैठा हुआ बंदूक लगाकर, दुश्मन तो चला गया निकल कर। तो मेरा टारगेट पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मेरी सप्लाई चेन है। यदि वो मिस हो गई तो आई कैन मिस माय टारगेट। तो आज इसी तरह हमारी इंडस्ट्री के अंदर बस मैं इसी पे कहूं कि भी हमारा टारगेट को पूरा किसको करना है तो वह लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन का बहुत बड़ा महत्व है। अब आज जो हम बात करते हैं पुराने मतलब मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, 10 साल पहले की बात करता हूँ या 15 साल पहले की बात करता हूँ, कितना ज्यादा दुर्भाग्य था हमारा। 2003 में यदि मैं मेरी कंपनी की बात कहूँ कि उत्तर प्रदेश से गाड़ी को निकालना हमने बंद किया था। यानी हमारी गाड़ियाँ यदि मद्रास जाती थी तो रास्ता क्या है? पलवल, मथुरा, आगरा, ग्वालियर होती हुई वहाँ चेन्नई पहुंचेगी और 1 किलोमीटर है, वहां सीधी जाएगी तो 2140 किलोमीटर। मगर हमने उत्तर प्रदेश को छोड़ा हुआ था जैसे कोई भारत का हिस्सा ही नहीं। हम जाते थे जयपुर और पूरा घूमते हुए 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा और आते थे 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा। कितने साल छोड़ा? 2003 से लेकर 2017 तक, जब तक योगी नहीं आए थे, इतने साल तक 400 किलोमीटर अप डाउन और 30 रुपए का खर्चा। तो यानी कि क्या था कि 400 × 30 12,000 रुपया खर्चा था। अल्टीमेटली व्हाट डज इट इज लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो इस तरह की लॉजिस्टिक कॉस्ट जो अननेसेसरी की लगती थी वो ठीक हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कभी किसी ड्राइवर को बोला करते थे भाई साहब चाबी फेंक दो, वहां नहीं जाऊंगा। पैसे तो लेते ही, हम मारते भी हैं। कौन? वो अधिकारी जिन्होंने वर्दी हमने बनाई है, इसको हम कहते थे कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट। इस तरह का बहुत था। तो लॉजिस्टिक का जो बदलाव आया हिंदुस्तान में ये 10 साल के अंदर देखा। जीएसटी के अंदर 25% हमारे ट्रांजिट टाइम कम हो गया। 8 दिन में पहुंचा करते थे वो अब 6 दिन में पहुंचने लगे। रोडों के ऊपर हड़ल लंबी लाइन लगा करती थी। कौन खड़ा है? एक अफसर खड़ा हुआ है। सुबह निकलता था, जब वो जाएगा उसको भूख लगेगी, उसे घर में कोई फोन आएगा कि पत्नी की तबीयत खराब है, तब वो जाएगा। तब तक हम इंतजार करते थे, प्रार्थना करते थे किसी घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए ताकि घर चला जाए, हम अपना रास्ता ना ले। तो जो हडल थी नई रोस्टी की, तो रोस्टी का जो पैमाना है वो केवल पार्टिकुलर इस तरह से मेजरमेंट करें हम कि उसके लिए। और यदि हम इसमें गहराई में जाए, क्योंकि हमने रोस्टी का जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर कंधे पे भार है, जो नीम का पत्थर है, वो है हमारा ट्रक चालक, जिसका हम कई बार बिना दिखना करे और अपनी पूरी रोस्टी की सेमिनार कर देते हैं। भूल जाते हैं क्योंकि आज भी 47 के अंदर और उससे पहले जो
कितने लोगों ने अपना जीवन की बलि दी, शायद आप नाम नहीं आता रहा, नए नए लोग अपनी नंबरदारी कर लेते हैं, तो उनको बिना याद किए, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर यदि मैं बात करूं तो 1,40,000 लोग मरते हैं और 1,46,000 रोड एक्सीडेंट से, जिसमें से 26,400 लोग इसलिए मरते हैं कि हमारे चालक वो नींद पूरी नहीं कर पाते। अब लोग बोलते हैं नींद पूरी क्यों नहीं करते भाई, आप कर लिया करो, आपके कारण 26,000 लोग मरते हैं। यदि मैं भिखारी को कहूँ कि भिखारी भाई आप है ना भोजन अच्छा खाया करो, नहीं तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी, भिखारी भाई क्या बोलेगा, बोला अच्छा मजाक कर रहे हो, भोजन ही नहीं है। सिमिलरली ड्राइवरों का जब हम पेन देखते थे कि वो सो नहीं पाते, क्योंकि सो जाएंगे तो डीजल की चोरी, बैटरी की चोरी, स्टेपनी की चोरी, माल की चोरी, रस्से की चोरी, तिरपाल की चोरी, पुलिस के डंडे, पैसे जेब से निकाल लेंगे और बड़े बड़े मच्छर उनको सोने नहीं देते। तो जो ट्रक चालक है सोना तो चाहता है पर सो नहीं पाता दुर्भाग्य से। एक ट्रक चालक, एक आम आदमी जो स्वस्थ है वो 6 घंटे सोते हैं मिनिमम, तो एक ट्रक चालक केवल 2 घंटे 50 मिनट उस तरह सोता है, 2 घंटे 50 मिनट। अब सोचो कि 6 घंटे वाली नींद यदि वो 2 घंटे 50 मिनट लेगा तो क्या होगा, नींद तो कभी सताएगी उसको। तो जब हम पूछे कि भाई नींद का इंतजाम कैसे करते हो, बोला इंतजाम कर रखा है, जेब से गोली निकाल के देता है जिसको बोलते हैं चर्स, बोला ये खा लेते हो, अपना नींद मर जाती है, धीरे धीरे करके वो चर्सिया बन जाता है। केवल किसके लिए, अफीम थोड़ी, वो अफीम वो गोली रखता है काली सी, बोला ये खा लेता हूँ जी, और वो अफीमिया बन जाता है। और उसके बाद आम लोग की आयु तो 79 ईयर्स है, तो एक ट्रक चालक की आयु औसतन 69 है, 10 साल पहले ही संसार से वो विदा होता है। इतना बड़ा सैक्रिफाइस है, तो हम उसकी आज जरूर चर्चा करें कि वो हमारा नींव का पत्थर है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, और हमारे लिए तो सब कुछ वो कृष्ण भगवान का रूप है, जो हम आज ये सब कुछ चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो चालक के कारण है। तो आज हमको उनको देखना पड़ेगा, मगर सौभाग्य ये है कि अब की बात है मोदी दोस्त, तो मार्च को या 2 फरवरी को उनका एक संबोधन था हमारे प्रगति मैदान में, तो उन्होंने 75 साल पहले 75 साल से हमें पहली बार सुनने को मौका मिला कि मेरे लिए ट्रक चालक, ट्रक भाई जो ये रोड एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, मैं इनके लिए 1000 रेस्ट रूम बनाऊंगा रोड के दोनों तरफ, और सारे कम्प्लीमेंट्री फ्री, कोई चार्ज नहीं होगा। ये है उनका विजन, ताकि वो रहेंगे तो चालक रहेंगे, तो ट्रक रहेंगे, ट्रक रहेंगे तो मोटर पार्ट्स वाले बेचेंगे, फिर दुनिया भर की फैसिलिटी रहेगी। तो आज एक नई नीति के अंदर जो एक बहुत बड़ी सोच जिसको छोड़े हुए थे, वो आज हमारे प्रधानमंत्री के कारण ये आने वाली है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि लॉजिस्टिक की जब भी कोई पॉलिसी हो, उनका उद्घाटन करे बगैर मेरे ख्याल में वही। मुझे लगता है सर, जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जैसे हम रोड्स की बात करें तो उसके वजह से, और जैसे अब जहाँ तक मेरे को ध्यान है या मेरी नॉलेज आती है, आने वाले समय में एयर कंडीशन कैबिन एक ट्रक में होना एक अनिवार्य चीज़ हो जाएगी फॉर इट टू फ्लाई ऑन द रोड। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट्स है या जो भी इम्प्रूवमेंट्स करी जा रही हैं, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जैसे आपने बताया कि हाँ जी रेस्ट रूम्स वगैरह प्रोवाइड करना या टॉयलेट्स वगैरह प्रोवाइड करना, जो कि पहले एक बड़ी ही मतलब रेयरली अवेलेबल फैसिलिटी होती थी, इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा। और ये सिर्फ आपके लॉजिस्टिक्स के लिए नहीं सर, बिजनेस के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले हम लोग जब हम माल भेजा करते थे, डेस्टिनेशंस लंबे होते थे, तो हम लोग कहते थे कि साहब पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि वो कब पहुंचेगी गाड़ी। आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि भाई 7 दिन, 5 दिन, 8 दिन में गाड़ी पहुंच जानी चाहिए, एक आध दिन आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो उतने टाइम में जनरली पहुंच जाती है, जो कि पहले इस तरह से नहीं हुआ करता था कि गाड़ी कहीं फंस गई, कभी टैक्सेस की वजह से, कभी टैक्सेशन तो 5 नंबर की गाड़ी चल रही है जी इसकी वजह से फंस गई है, या कभी कभार इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही रोड कहीं कोई पुल टूट गया, कोई रोड टूट गया, बाढ़ आ गई, रही सही का सर गाड़ी मतलब जो व्हीकल जो होती थी उसकी क्वालिटी इतनी पहले अच्छी नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से कि ब्रेकडाउन ज़्यादा हुआ करते थे, जो अब जैसे कि आप साहब सही कह रहे हैं कि अब ये ओवरकम किया जा रहा है, और इंडस्ट्री चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, चाहे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री क्यों ना हो, इन सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इसी चीज़ को
आगे बढ़ाते हुए अग्रवाल साहब, एक क्वेश्चन और मैं आपसे करना चाहूँगा कि क्या आप सोचते हैं कि लॉजिस्टिक्स अब सिर्फ एक लास्ट माइल चीज़ रह गई है इंडस्ट्री के लिए? बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि आज लॉजिस्टिक्स इज नॉट ओनली द लास्ट माइल थिंग, एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। चाहे वो मार्केटिंग समझ लें, चाहे प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए समझ लें, चाहे प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए समझ लीजिए, लॉजिस्टिक सिर्फ ट्रकिंग नहीं रह गया। लॉजिस्टिक हैज taken aspects like warehousing. Logistic has taken aspects like providing that material when as and when it is requested by a customer. आज की तारीख में Amazon है या डिलीवरी है या इस तरीके के फ्लिपकार्ट हैं, ये सब चीज़ें जो हैं they have integrated so well that you cannot separate. It's like पानी में दूध जिस तरह से मिल जाता है उस तरीके से हो चुका है कि आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। बिजनेस एंड लॉजिस्टिक्स हैव बिकम इंटीग्रेटेड। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये सब मंच बैठा, सब हाउस में सब लोग एजुकेटेड लोग बैठे हैं लॉजिस्टिक के बारे में, क्योंकि जब मैं कहीं ऐसी बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपको नफरत ना हो जाए। लॉजिस्टिक के जीवन की रक्षा बन गई। गहराई से देखो, आज कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो थोड़ी सी गलत लॉजिस्टिक, पुअर लॉजिस्टिक के कारण फैलती है। एक आपने कभी सुना होगा, वो ये चिप्स के अंदर कुछ हो गया था, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया था और कितनी पुरानी चिप्स को मतलब उन्होंने अंदर फेंक दिया था। अब क्या प्रोडक्शन में कुछ गलती थी क्या? प्रोडक्शन तो वैसे ही था, उसके बाद भी पता लगा तो वैसे ही था, बट इट मतलब पुअर लॉजिस्टिक। पूना से चला था, कानपुर आया था और उसके बाद वो किसी ने खाया और खाने के बाद उसकी उल्टी गिर गई। उसने कंप्लेन करी, मेडिकल चेक हुआ तो पता लगा कि वो चिप्स के अंदर कुछ ना कुछ अलग ही कंपोनेंट्स मिला हुआ है। रेंसिडिटी फिनोमेना टुक प्लेस। आज हम कोई भी चीज लेके आते हैं बाजार से, किराना शॉप से, आप एक दुकान से एक साबुन की टिक्की लेकर आओ और साथ में बिस्किट के पैकेट लेकर आओ। रात को उन दोनों को, दोनों पैक है, वेल पैक्ड है, बिस्किट अलग पैक्ड है और साबुन की टिक्की अलग पैक्ड है। एक पॉलीथीन में रात को डाइनिंग टेबल पे रख दो, क्या सुबह खा सकते हैं क्या? मतलब अलग अलग से पैक है, बिकॉज इनकी फितरत ही ऐसी है कि दैट रेंसिडिटी फिनोमेना टेक्स प्लेस। वो एक ऐसा होता है कि ऐसे दो चीज तत्व तो साथ में आने के बाद उनकी एक्सपायरी डेट बिस्किट की है अक्टूबर 2024, मगर हम लेकर आए अप्रैल के अंदर, तो इट हैज एक्सपायर्ड मच बिफोर एक्सपायरी डेट और हम खाते हैं एक्सपायर्ड फूड। इसी तरह एक ट्रक के अंदर गुवाहाटी जाती है दिल्ली से, मैं उसमें साबुन भी भरता हूँ क्योंकि नीचे आ जाता हूँ, ऊपर हल्का सामान बिस्किट भर देता हूँ। हमारे गिरिराज साहब बैठे हुए हैं, अक्सर ट्रांसपोर्ट वाले सोचते हैं कि खाली है चलो इसमें बिस्किट भर लो, और हमने क्या कर दिया 24 घंटे में वो एक्सपायर हो गया बिस्किट। एक्सपायर्ड बिस्किट हम गुवाहाटी लेके जाते हैं, जनता खाती है, कितने बीमार होते हैं, कितने सब कुछ होते हैं। आप सोचो कि कितना ज्यादा हम, अगर ये अभी तक, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं आई है कंज्यूमर में, और इतनी अवेयरनेस इवन लॉजिस्टिक प्रोवाइडर में भी नहीं आई है, उसने अपना भाड़ा डबल बना लिया और ये नहीं पता कि कितने लोगों को बीमारी दे दी। तो लॉजिस्टिक जो है वो एक जीने की शैली है, एक आदमी को जीवन कैसे बढ़िया बने। जैसे आज हम कई बार देखते हैं ना कि 100 लिखा होता है प्रोडक्ट के ऊपर, किसका प्रोडक्ट है? इसका है। तो आने वाले टाइम में हर पैकेट के ऊपर लिखा होगा ट्रांसपोर्टेड बाय सोनसो, फिर आपको समझना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेड बाय टीसीआई, ट्रांसपोर्टेड बाय डीजीएफसी, ट्रांसपोर्टेड बाय एपीएमएल। अच्छा, इन्होंने तो ये साबुन और बिस्किट साथ नहीं लाए होंगे, ये तो अलग अलग लेके आते हैं, तब जाकर लोग खाएंगे। अदरवाइज तो लॉजिस्टिक का एक जो है वो बहुत बड़ा महत्व है। तो ऐसे दुनिया भर के पदार्थ है, साबुन हो गया, केमिकल हो गए, अगरबत्ती होगी, टायर होगी, ऐसे 32 आइटम है जो किसी साथ लेके जाएंगे तो वो उसी दिन एक्सपायर हो जाते हैं 12 घंटे के बाद, और हम 6-6 दिन उनके साथ में रखते हैं। तो ये लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा महत्व है। अब दूसरा, ट्रांसपोर्टर का क्या रोल है इससे एक्सपायरी डेट से? ट्रांसपोर्टर का रोल ये है कि वो साबुन के साथ बिस्किट ना ले जाए। ऐसा नहीं है, तो जो व्यापारी माल भेज रहा है उसकी रिस्पांसिबिलिटी है, वो क्या ना उसका रोल, मैं उसका नहीं कहता कि उसका रोल क्या है कि
कि मैं मेरे वेयर हाउस के अंदर मेरे अपने पैमाने हैं, मेरा एक बड़ा लंबा चौड़ा वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस के अंदर मैं बिस्किट भी रखता हूँ, उस वेयर हाउस में टायर भी रखता हूँ, उस वेयर हाउस में कपड़ा भी रखता हूँ, उस वेयर हाउस में मैं साबुन भी रखता हूँ। तो मेरे जो नॉर्म्स है, एसओपी जो बनी हुई है, जो एफपीओ ने बना रखी है कि मैं साबुन के साथ में मेरा ट्रक साबुन भर लिया, उसके साथ में मैं साबुन ही लेके जाऊँ, कपड़ा लेके जाऊँ या और लेके जाऊँ, बट फूड आइटम कभी ना लेके जाऊँ, क्योंकि फूड आइटम उसके संपर्क में आने से वो 12 घंटे के बाद, तो व्यापारी ने तो कुछ नहीं दिया, व्यापारी तो एक साबुन दे दी, एक ने वो दे दिया, तो हम क्या करते हैं दोनों ट्रक मिलाकर एक में डाल देते हैं भाड़े की ज्यादा करने के लिए। तो व्यापारी का इसमें वो एक अलग चीज है, वो जो परचून का काम करते हैं वो उनको देखना है, जो फुल ट्रक का लोड काम करता है उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि उसने जो व्यापारी ने गाड़ी मांगी, मेरे को सूरत की गाड़ी चाहिए, उसने क्या माल भरा हमारे को उसको बिल पर्चे दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, जीएसटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उसकी है, पेपर्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, गुड्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टर का कोई रोल नहीं है, उसमें एक्सपायरी डेट है या नहीं है हमारे को नहीं, आप मैं वो नहीं कर रहा कि उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, उसका अपना विषय नहीं है। एक्सपायरी डेट आपकी लिखी हुई है अक्टूबर 2024 की, मगर मैं आज बिस्किट और रख दूंगा मार्च में, लिखा तो अक्टूबर का, पर मेरा एक्सपायर आदि हो गया, आपका फूड आइटम के साथ है। अब वो मेरा एक्सपायर खाने वाला तो देख के ही खाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉजिस्टिक की है, तो उसको कैसे सही तरीके से लेके जाना है, क्योंकि मैं एक नागरिक हूँ, मेरे को ट्रेड का पता है। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने गलत दवाई दे देगा तो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ही नोज वेरी वेल, मेरे को क्या मालूम, मैंने तो क्या नहीं, मेरे तो देखो लूज मोशन है, तो मेरे को कोई आदमी, मैं घनसमान का काम करता हूँ, उस बेचारे को नहीं पता कि मेरा फ्रिज कैसे जाएगा, मेरा टीवी कैसे जाएगा। घर सामान के अंदर आपको बताऊं मैं, आपको ताजुब हो जाएगा कि 38% लोग शिफ्ट करने के बाद, साधारण पैकर से 38% लोग शिफ्टिंग के बाद उनके बुजुर्ग और बच्चे बीमार हो जाते हैं। ये हमने स्टडी करवाई, तो हमने बोला कि भाई बीमार होते तो हमारा क्या रोल है, जैसे सर बोल रहे हैं ऐसे हमारा क्या रोल है, हम तो आपका यही सब घर से उस घर के अंदर सामान लेकर चले गए और खाली कर दिया, फ्रिज चलती है, टीवी चलता है। हमको जब पता लगा वी वर सो टू नो दैट, 16 साल से हमने कितने लोगों को बीमार किया था हमको भी नहीं पता था। जब कोई भी हम काम करते थे यार 15 साल 16 साल 17 साल पहले, तो सबसे ज्यादा घर सामान के अंदर क्या होता है, कार्टन यूज होते हैं, दत्ते के कार्टन, जिसमें कपड़े, बर्तन, खिलौने बच्चों के, खाने का सामान इन कार्टून में पैक होता है। और कार्टून अभी नए हम बनाते हैं, आपको मुकुल जी बना के देते हैं, उसके बाद तो हम इनसे बनवाना शुरू कर दिया, जब हमको पता लग गया कि लाखों लोगों को हमने बीमार कर दिया, अस्पताल के अंदर कितनी दवाइयों का खर्चा करना पड़ा होगा। जब कार्टून हम लाया करते थे कबाड़ियों से, और कबाड़ी की दुकान कहाँ होती है, तो शहर के सबसे सस्ती जगह गंदे नाले के पास, जहाँ कौन विराज करेगा, सुअर, बिल्ली, कुत्ते, चूहे, वो उन पे खूब मस्ती से खेलते हैं। वो कार्टून लेके आया करते, उस कार्टून में बुजुर्ग का सामान, दवाई, कपड़े, बच्चों के खिलौने, और वो जब वो सामान खोलते ही उस खिलौना बच्चा उस कार्टून को मुंह में ले लेगा तो क्या होगा, मतलब बीमारी होगा। और लिटरली हमने जब मैग्नीफाई ग्लास से उस कार्टून को चेक किया तो मालूम हुआ कि वहां टिश्यू चलते हुए थे। एक लैब के पास गए हम, नेल्सन लैब, बहुत बड़ी लैब है, मतलब ये बीमारी कैसे फैलती है, तो नेल्सन लैब ने प्रूव किया कि 38% लोग आपके इसलिए बीमार हो जाते हैं कि आप ये कबाड़ी के कार्टून करते हैं। पता मेरे कंज्यूमर को क्या पता कबाड़ी कार्टून है क्या है, वो तो कहेगा भी कार्टून लाया आपने पैक कर दिया। इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी बीइंग ए सिटीजन। अब वो लॉजिस्टिक का जमाना नहीं रहा, कुछ भी आपको दे दे, कैसा भी आपका सामान ले जाए, किसी तरह ले जाए, मैं कहूँ कि साहब मेरे को तो भाड़ा दिया तो मेरे को क्या मालूम, रोड बम्पिंग है, जंपिंग है, मेरी रिस्पांसिबिलिटी है कि मैं सोकर वाली गाड़ी दूं आपको या आपको नॉर्मल फट्टे वाली गाड़ी दूं, क्योंकि आपका मटेरियल जैसा है वैसा आपको पूछना चाहिए। भाड़ा आप जरूर दे रहे हो, बट आपको भाड़े के साथ साथ भी मेरी बीइंग ए ट्रांसपोर्टर जिम्मेवारी बनती है कि मैं जैसा माल लूं वैसा पहुंचाऊं। उस ट्रक के अंदर क्या अल्टरनेशन करना है, क्या पैच करना है, वो मेरी जिम्मेवारी है, कैसे लेसिंग करनी है। तो बहुत चीज लॉजिस्टिक के अंदर जो आपने कहा, चीजें खूब बदलाव हो रहा है। हम 2-3 बैठे हैं जहाज के अंदर, और जब लेफ्ट को जब मुड़ते हैं, जब जहाज चलती है तो राइट वाला लेफ्ट को गिर सकता है, तो तीनों को हम क्या करते हैं, सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं ताकि एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर ना गिरे। तो सामान भी ऐसे गिर सकता है, सामान यदि आप लोड करोगे तो वो भी गिर सकता है। तो वो
हर सामान के ऊपर कैसे लेसिंग हो, कैसे सेफ्टी बेल्ट लगे ताकि वो हाई वैल्यू कंसाइनमेंट ऊपर ना गिरे। फ्रिज की भी आप मोल लेते होंगे, यदि मेरे को कोई कहे एक फ्रिज मोल ले लो आप, तो मैं बिकॉज मेरे को पता है, भुगत हो गई हूँ। आप बस में जाते हो कि आगे की सीट एक पीछे की सीट, आगे की सीट आपकी 800 रुपए की है बस की, और पीछे की सीट यदि कोई 800 रुपए में देगा तो आप ले लोगे क्या? 100 में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बम्पिंग डंपिंग ज्यादा है, तो दर्द होता है, यू कैन नॉट वर्क। आप उतरने के बाद तो पीछे कोई आदमी बैठना नहीं चाहता। अब बेचारी रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, टीवी उनको पीछे रख देते हो, तो गूंगे हम बात नहीं करते, दर्द तो उनको भी होता है, उनमें जान नहीं है और दर्द तो होता है ना। और आगे की फ्रिज और टीवी कंडीशनल वारंटी आपकी कितने साल की है? 9 साल की, वो 9 साल तक आपकी खराब नहीं होगी, और पीछे वाली आपकी 5 साल में खराब हो जाएगी। पैसा कितना देते हो? दोनों का बराबर कम देते हो क्या? तो आज एक बायर को बताना पड़ेगा, एक सेलर को, ये पीछे वाली है भाई, इसकी 50,000 रुपए कीमत है, ये आगे आई है, इसकी कीमत 90,000 रुपए है, बताओ कौन सी लोगे? दिस हैज टू बी कम इन द प्रैक्टिकल यूजर्स बायर्स का मार्केट, ये हमको बताना पड़ेगा। तो रोस्ट्री का बहुत बड़ा एक आने वाले टाइम में काम होगा। मतलब मेरा कंज्यूमर क्यों चीट हो? कंज्यूमर को तो पता नहीं, वो तो शोरूम में जाकर गया, फटा बोला ये फ्री दे दो, तो मैं उनको बताऊंगा ये पीछे वाली आई हुई है, ये आगे वाली आई है, ये 24 कैरेट सोना है, ये 18 कैरेट है, 16 कैरेट है, सोना तीनों है, पर आपको हमको बताना पड़ेगा। तो ये रोस्ट्री का बहुत बड़ा खेल होने वाला है, और ये परमात्मा की दया से कंज्यूमर भी अवेयर होंगे और ट्रांसपोर्टर और रोस्ट्री प्रोवाइडर भी अवेयर होंगे, और देयर विल बी बिग चेंज। और जब ये चेंज होगा तो अब एप्पल लेके आते हैं, एप्पल का क्या क्या फिनोमेना है? 25 डिग्री टेम्परेचर से तोड़ने तक, खाने तक 100% उसका मिनरल, हमारे जो भी इसकी जो यूटिलिटी होती है वो 100% है, 25 डिग्री तोड़ने से और खाने तक। अब वो जा रहा है हैदराबाद, वहाँ टेम्परेचर है 42 डिग्री, तो 25 वाला 42 हो गया, उसके तो 100 में से 40% तो उसकी यूनिट मिल गई। हम कितने दे रहे हैं? किलो के हिसाब से भाव दे रहे हैं, आरबी बाई यूनिट। 100 में से 50 खत्म हो गई, 100 रुपए दे रहे हैं और 50 रुपए का माल दे रहे हैं। तो अब हमको 25 डिग्री टेम्परेचर से लेकर कंज्यूमर को 25 डिग्री तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि 100 का 100 मिले। हाँ, हम डिक्लेयर करेंगे ये भैया 50% वाला है, आप आधे रुपए दे दो इसको, क्योंकि देखने में तो दोनों ही जैसे दिखते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बिग चेंज इन कंज्यूमर्स एंड दिस बिकॉज ऑफ रोस्ट्री। थैंक यू। आज आपने हमारे को वो पर्सपेक्टिव दिखाया लॉजिस्टिक्स का, जो कि शायद हम कभी सोचने भी नहीं पाते, और इन सब चीज़ों से हम तभी तो कहता है कि दोस्ती से नफरत मत करना, क्योंकि अभी साधन नहीं है, पर ऐसा होगा। आज जो आपकी बात सुन कल्पना के बाहर की बात हुई, मेरे को दिमाग में आती नहीं थी, क्योंकि सब लॉजिस्टिक में करते हुए इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, या बीमार आदमी से हो सकता है कि कार्टून लग जाए। अग्रवाल साहब ने आज ऐसी ऐसी चीज़ों से अवगत कराया हमारे को, जो कि डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स के लिए आने वाले समय में मेरे हिसाब से एक रेवोल्यूशन लाने पाएंगे। जी 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 प्लीज। सर वो सर कह रहे थे कि ये कह रहे थे वो चीज़ें बहुत बार वेयर हाउस में बहुत 2-3 चीज़ें प्रोडक्ट है वो उसमें इकट्ठे होते हैं, तो वो मिक्सअप ना हो जाए। तो सर जो सामान ले रहा है, जो वो ट्रक को मूव कर रहा है, तो उसको पूरे ट्रक के पैसे मिल रहे हैं, वो उसकी 2 चीज़ें मिक्सअप करेगा, या फिर अगर वो उसको लिमिटेड ही मंगाना है तो वो ट्रक छोटे वाला करेगा ना, बड़े वाला क्यों करेगा? आई थिंक जो अग्रवाल साहब बता रहे थे वो ऐसा रहता है कि जो भी ढींगरा साहब ने भी बोला कि 2 अलग-अलग किस्म के ट्रांसपोर्टिंग रहती है, एक फुल ट्रक लोड और एक पार्ट लोड। पार्ट लोड में एसओपी ज़्यादा होते हैं और एसओपी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, जो कि इन्होंने बताया, एक बड़ा ही क्लासिक एग्जाम्पल दिया है। जितने भी एफरवेसेंट्स होते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं, जो कि खुशबू जिसको हम बोलते हैं, फ्लेवर बोलते हैं, इनको एफरवेसेंट्स में रखा जाता है। इनका इफेक्ट ऐसा होता है कि वो थ्रू पैकिंग भी पास होता है, क्योंकि आप एक साबुन को खोल के नहीं सूंघते। जब भी आप एक साबुन लेते हैं या कोई नया साबुन लेते हैं, आप जनरली उसको पैकिंग में ही सूंघ लेते हैं। जो आपने ये जो सूंघा उसको, वो जो क्षमता है जो आपकी उसको सूंघने की, वो उस एफरवेसेंट की कैपेबिलिटी होती है। और फूड, जैसे हम बिस्किट की बात करें या चिप्स की बात करें, तो उसकी एक कैपेबिलिटी होती है टू ग्रास्प, वो ग्रास्प करता है। तो एज अ रिजल्ट जो अगर इस तरह की चीजें साथ रखी जाती हैं तो उससे फूड की वैल्यू कम होती है। दिस इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। आपका थोड़ा तो क्वेश्चन अलग था, मैं इसका भी आपने काफी बार रोड पे देखा होगा, एक ट्रेन है पूरी जिसमें 40 बोगी है और सब पे कंटेनर रखे हुए होते हैं।
एक के अंदर तेल है, एक के अंदर लोहा है, एक के अंदर साबुन है, पर ट्रेन तो पूरी एक है, इसमें मिक्सअप तो नहीं होता। और हर कंटेनर में अलग अलग मटेरियल है। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे 50 फीट के ट्राले होते हैं, आपने रोड पे देखा होगा, एक 50 के ट्राले के ऊपर, खासकर स्टार्ट तो एपीएमएल ने किया था, अभी काफी लोग उसके अंदर आ गए हैं। हर जगह 4 फीट का डब्बा, 8 फीट का, 10 फीट का, 12 फीट का, 16 फीट का, सभी टाइप के कंटेनर बनाए हुए हैं। चौड़ाई सबकी 8 है और उसकी लंबाई इसकी 4 फीट की। कभी रोड पे आपने देखा होगा ना बेबी कंटेनर, वो एपीएमएल के कभी रोड पे आपको देखने का मौका मिला होगा, उसमें 8 कंटेनर होते हैं, कभी 6 होते हैं, कभी 5 होते हैं। तो एक में साबुन, एक में घर सामान, एक में तेल, एक में कपड़ा, एक में सोनसो, अलग अलग है, एक्सक्लूसिव बट इंक्लूसिव। भाड़ा उतना ही लेंगे ट्रक का, आपका ट्रक तो एक ही जा रहा है और 8 लोगों का माल जा रहा है, जो एक दूसरे को अनसीन अनटच, न तो दूसरे को दिखता न टच हो सकता। एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि एक ट्रक का भाड़ा देते हैं, एक्सक्लूसिव इसलिए कि सबका अलग जा रहा है, इंक्लूसिव इसलिए भाड़ा उतना ही है, 5-10% प्रीमियम लग जाता होगा। बट तो ये सारे सिस्टम्स अपने हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग इट। इसी मतलब let's proceed ahead now. We've had discussion on the domestic logistics. I would now move to Dr. Pushpendra ji. Sir, what do you feel as far as logistics in export is concerned? Because I feel that you should be more in tune with shipping and exports. So please put your points across. My gratitude to the organizers and industry leaders and delegates and of course panelists and moderator as well. See, आज का जो पर्सपेक्टिव है लॉजिस्टिक, इट इज टोटली चेंज्ड। और इसमें जो पहली वाला पैनल था, उस पैनल में डिस्कशन हो रहा था, इंडस्ट्रीज की बात हो रही थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात हो रही थी। अगर हम लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। सबसे पहले बात करूँगा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने NLP नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च करी। साहब ने बात करी डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट की, मैं इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ, इसको हम लॉजिस्टिक कहते हैं। इमेजिन करें कि ट्रांसपोर्ट नहीं होता या लॉजिस्टिक नहीं होती तो क्या होता? एनी गेस क्या होता सर? I think we would be left with nothing because whatever is being manufactured here needs to be transported to another place, and likewise if there is a demand there, the goods are supposed to go from here. जो ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो आवागमन कैसे रहेगा? बिल्कुल। तो जो लॉजिस्टिक है और ट्रांसपोर्ट है, जो डोवाल साहब ने कहा, बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लॉजिस्टिक्स का जब मैंने 25 इयर्स बैक ये अपनी कैरियर शुरू किया था इस इंडस्ट्री में, तो बहुत डिफरेंट लॉजिस्टिक थी। हम फैक्सेस भेजा करते थे, है ना, पेजर्स भी बाद में आए, मोबाइल्स नहीं होते थे, ये सब चीज़ थी। और जैसे साहब ने उत्तर प्रदेश का नाम लिया, तो हमारा एक कंटेनर डिपो है, इसे हम लोग कहते हैं ICD दादरी, इनलैंड कंटेनर डिपो। वहाँ पे इनिशियली लोगों को बहुत डर लगता था कि हम वहाँ अगर लेट हो गए, बेसिकली जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बाइक्स पे ही चलते हैं नॉर्मली। उस समय तो बिल्कुल बाइक पे चलते हैं, आज हमारी सैलरीज बहुत हैं, हमारे को हर फैसिलिटीज़ है, क्योंकि FDI है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, इंडस्ट्रीज बहुत ग्रो कर गई हैं। तो वो डर रहता था कि अगर हम परी चौक से आए तो रास्ते में कोई ना कोई हमें लूट लेगा, चाहे हमारे पास 100 रुपये हो चाहे 200 रुपये हो। तो मैं कमिंग बैक टू लॉजिस्टिक्स, कि लॉजिस्टिक जो मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज ने जो रोल प्ले किया है, जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ने रोल प्ले किया है, उससे हमारा जो इंफ्रा है, साहब ने जैसे कहा, हम यूपी होके नहीं लेके जाते थे, 200-300 किलोमीटर एडिशन लेके जाते थे। आज ऐसा नहीं है। आज यूपी के रोड्स, मुझे तो सिंगापुर चाइना से विच्छेद है, हाँ जी, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। तो आज रोड्स जो इंफ्रा है ये NLP की वजह से ही बस है। फिर NLP को सपोर्ट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और पॉलिसीज करी, जिसके अंदर उन्होंने गति शक्ति योजना को लॉन्च किया। मैं टेक्निकल टर्म से थोड़ी बात करूंगा। और गति शक्ति को जब लॉन्च किया तो उसकी वजह से जो वेयर हाउसेस हैं, वो वेयर हाउसेस बहुत रोड्स के पास होने लगे। पहले क्या होता था, वेयर हाउसेस ही गाँव में जाके हुआ करते थे,
वहाँ जाना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। अभी मैं इंडिया लॉजिस्टिक की बात करूँ मतलब इंटरनेशनल जाएंगे, बहुत मुश्किल हुआ करती थी, डिफिकल्ट होता था। लेकिन आज मेरा बहुत कनेक्टेड और जो हेलो एनीहाउ बात कर सकते हैं, मुझे लगता है तो सप्लाई का एनीहाउ आज कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड हैं, और जो ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक है, वो बहुत इजी हो गई है, बहुत स्मूथ हो गई है, और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई है। ऑफकोर्स जब हम ट्रांजिट टाइम हमारा कम रहेगा, कम हमारा ट्रेलर चलेगा, ट्रक चलेगा, तो कॉस्ट कम हो जाता है। उसको अब गति शक्ति को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने और भी पॉलिसीज बनाई, जैसा जिसके अंदर सागरमाला, गतिमाला, भारतमाला, जो जिसके अंदर 16 इंडस्ट्रीज टुगेदर काम कर रही हैं और बहुत ही कोहेसिवली काम कर रही है। और ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं, अगर आप चाहें तो उस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो उसकी वजह से आज जो लॉजिस्टिक का पर्सपेक्टिव जब उन्होंने शुरुआत करी थी और आज का पर्सपेक्टिव बिल्कुल एंटायरली चेंज है। अब हम इंटरनेशनल बात करें तो जब जिसमें हम कभी भी बात करते हैं, लॉजिस्टिक की बात करते हैं, तो बात चला तो हम एट द सेम टाइम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो साथ में बोला था कि कार्बन एमिशंस, कार्बन एमिशंस की बात करूँगी तो मैं तो उस इंडस्ट्री से आता हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशंस है। लेकिन आज गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से काफ़ी चेंज आया है। आज की डेट में हम लोग ग्रीन फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट रूट्स यूज़ कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसीज बेसिकली जो वेसल्स जो होते थे पहले, आप एक्सपोर्टर से आपको पता होगा कि वेसल्स जो होते थे पहले, वेसल्स के साइज बहुत छोटे होते थे। वेसल दो तरह के होते हैं, फीडर वेसल होता है, मदर वेसल होता है। आज साइज की जो कैपेसिटी है 12,000 कंटेनर्स, 15,000 कंटेनर्स इंक्रीज हो गई है। दूसरा रूट्स जो हमने कहा कि हम लोग बहुत ही वाइज रूट्स यूज करते हैं, तो ट्रांजिट टाइम पहले जहां हम यूएस के लिए शिपमेंट भेजते थे 35 डेज, 40 डेज, 45 डेज लगता था, आज वो 20 डेज से नीचे आ चुका है, 20-21 डेज में आ चुका है। ऐसी सर्विसेज यूज हो रही हैं। दूसरा, जहां पे हमें 8 से 10 दिन लगता था रेलिंग पोर्ट से लेके आईसीडी तक, आज वो 3 to 4 डेज में बहुत सक्सेसफुली आ रही है। तो ये सारी चीजें मैं फिर प्रेज करूंगा हमारी गवर्नमेंट को कि उन्होंने जो पॉलिसीज लॉन्च करी हैं उन पॉलिसीज की वजह से हो पा रहा है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि हमने हमेशा कैरियर में सीएफएस ली, कंटेनर फ्री शिपिंग, लेकिन आज इतना चेंज आ गया कि अभी रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन ने एएफएस लॉन्च किया है। It took 10 years to those guys to fight with government, to systems, to legals, to take the approval of AFS. तो AFS तो भी नहीं होता, जो भी आपका कार्गो जाता है, जो भी आपकी शिपमेंट जाती है डायरेक्टली एयरपोर्ट में जाती है, और एयरपोर्ट में कस्टम काउंटेड वेयर हाउसेस होते हैं, उनके अंदर जाती है। लेकिन उन्होंने एक सफल बनाया, और लास्ट वीक ही उसका हुआ था, कॉन्टिनेंटल कंपनी है, नाम सुना होगा आपने, मिस्टर बोहरा साहब ने। तो उन्होंने 10 साल करने के बाद आज उन्होंने एक फर्स्ट इनिशिएटिव लिया। अब कितने लोग उसको फॉलो करेंगे? तो आप ये सोचिए कि हमारे दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, गुड़गांव में भी कहो तो पूरी इंडिया में जी कुछ शिपमेंट्स होती हैं बहुत कॉस्टली शिपमेंट्स होती हैं, कुछ पेरिसेबल शिपमेंट, करेक्ट, उन शिपमेंट को ट्रैफिक में फंस जाए तो ना तो वो कैच कर सकती हैं, फ्लाइट्स का डिफरेंट होता है, जो आपको पता है। तो आज उसके वेयर हाउस में डायरेक्टली जाके वहाँ से डायरेक्टली एयरपोर्ट में चली जाएगी और कस्टम क्लियरेंस भी वहीं हो जाएगी, तो वो जो लीड टाइम है वो शॉर्ट होता है। सो ये सारी चीज़ें आज की लॉजिस्टिक है, और आज की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में और पहले की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में जो मेजर डिफरेंस ये है कि आज हमारी इंडस्ट्री के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं जो लॉजिस्टिक्स के ऊपर ही पढ़ाई कराती हैं। पहले नहीं होता था। पहले हमने जॉब में ज्वाइन किया, हमने एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया तो हमें खुद सीएफएस जाना होता था, खुद एयरपोर्ट जाना होता था, हमें सीखना होता था सर। हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती थी कि हमें सब सीखना है, तब जाके हम कुछ आगे कर पाते थे। आज ऐसा नहीं है। जो न्यू जनरेशन आ रही है बहुत एडवांस है, वो सीख के आ रही है, वो इंस्टीट्यूट वाले प्रैक्टिकली में सिखाते हैं, फिर उनको आईसीडीज में लेके जाते हैं, सीएफएस में लेके जाते हैं, पोर्ट्स में लेके जाते हैं, उन्हें वो सारी बेसिक नॉलेज देते हैं। दूसरा पॉलिसीज की नॉलेज देते हैं, और टर्म्स, हर शिपमेंट के टर्म्स होते हैं, बहुत टर्म्स होते हैं, डीएपी, ईडीपी, सीआईएफ, एफओबी, वो सारे टर्म्स पहले से ही उन्हें पता होते हैं। हमें सालों लगते हैं उसे सीखते। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं। लॉजिस्टिक्स में नो डाउट देयर हैज बीन ग्रोथ, चाहे वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम आइटरेशंस की बात करें, चाहे हम सर्विसेज की बात करें, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे एक्सपोर्ट हो,
there has been a lot of growth as far as logistics is concerned. दूसरा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा जी। इसमें, यहाँ तो हमने लॉजिस्टिक की बात करी, जो मेजर चेंज है लॉजिस्टिक के अंदर जी। वो है टेक्नोलॉजी का। Correct. टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग पाइवटल रोल इन लॉजिस्टिक्स नाउ। Exactly. एआई की बात करते हैं साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट हुई है। आज हमें रिपोर्ट्स भेजने की जरूरत नहीं है, आपकी शिपमेंट की हमें कोई डिटेल भेजने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन सब चेक कर सकते हैं। That's right. वो सारा ऑफ कोर्स देयर इज अ कॉस्ट फॉर इट, बट आज सारा कुछ आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। साहब ने बोला कि पहले टेलर जाता था तो पता नहीं होता था, आज आपके पास उसका एक्सेस रहेगा टेलर का। Exactly. आज दूसरा जो बॉक्सेस होते थे पहले, कोरोगेटेड बॉक्सेस होते थे पैकेजिंग के लिए, आज बहुत चेंज हो गया है। उन्हीं बॉक्सेस को आप, मैं जेके टायर का काम करता हूँ, 100-200 कंटेनर इंपोर्ट लेके आता हूँ, आज ऐसा है कि वही बॉक्सेस रीयूज होते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी में, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प कर रही है। सो आज लॉजिस्टिक ओनली लॉजिस्टिक नहीं, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड टोटली। Thank you. Thank you very much, sir. Thank you so much. Yes, logistics, we agree, it is no more just that word transportation. Logistic today includes much more than transportation. And नवीन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जहाँ तक हम एक्सपोर्ट्स को समझते थे पहले, it used to be only product. आज उसके अंदर सर्विसेज इंक्लूडेड है, उसके अंदर नॉलेज इंक्लूडेड है, but obviously I believe services and knowledge is something which is still growing, and there is a plateau that we are reaching as far as domestic exports are concerned. मैं products की बात कर रहा हूँ सर। तो as an expert, what do you feel we can look forward as far as exports are concerned? So please, your home. Thank you. I've already touched about the practical things of that. Being a chamber, so we are into the policies and what government is doing the policies and all. So जिस तरह से अभी सरकार की पॉलिसी है कि हमको एक्सपोर्ट्स को 5 ट्रिलियन लेके जाना है, और उस पर वो काफ़ी एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे अगर मैं उसको इवेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेंशन करना चाहूँ तो अभी पीछे आपने 2 महीने में इवेंट देखे होंगे, एक भारत टेक्स, एक भारत मोबिलिटी। तो उसमें आइडिया क्या किया उन्होंने कि जितने भी टेक्सटाइल सेक्टर के लोग इन्वॉल्व थे, चाहे वो गवर्नमेंट की अपनी काउंसिल्स थी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने सबको इकट्ठा किया और एक इवेंट खड़ा किया और बायर्स को बाहर से बुलाया। करीब 1000+ बायर्स उसमें आए बाहर से, टू शोकेस कि इंडिया क्या आपको ऑफर कर सकता है। जो उन्होंने G20 के टाइम आपको दिया था, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली, तो मोदी जी की सरकार की तरफ से ये हुआ कि हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर में क्या आपको ऑफर कर रहा है एट 1 प्लेटफॉर्म। तो पूरा प्रगति मैदान और यशो भूमि द्वारका वाले में उन्होंने उसको शोकेस किया। ऐसे एक दूसरा इवेंट था भारत मोबिलिटी, जिसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीज को किया है। अभी उनका डिस्कशन चल रहा है ऑटो सेक्टर ऑल्सो, ऑटो एक्सपो ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग अंडर दैट कैटेगरी। सो जो मोटिव उनका वो ये है कि हम दिखाएं बाहर जाके कि हम एक्सपोर्ट्स करने के लिए हम पूरे सक्षम हैं। यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट को हम पूरा बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं छोटे वाले, उन सबको मौका मिले, कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और लॉजिस्टिक्स जैसे एक्सपर्ट्स ने बताया अभी आपको, वो जो उसमें उनको चैलेंज आ रहे हैं वो उसको वहाँ पे कवर अप कर रहे हैं कि कैसे हम आपको एक्सपोर्ट्स में हेल्प कर सकते हैं। इस चीज़ में हम आपको बायर ला के दे रहे हैं और लॉजिस्टिक्स में साथ साथ हम आपको समझा रहे हैं किस तरह आप उसको बाहर लेके जा सकते हैं। प्लस जो उनकी बाकी स्कीम्स हैं, जैसे कॉमर्स मिनिस्ट्री की स्कीम है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम, जिसमें वो सब्सिडाइज्ड पार्टिसिपेशन कॉस्ट आपको देते हैं, जिसमें आप बाहर जाकर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जो छोटी MSME कंपनीज हैं उनको प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप वहाँ जाइए ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, आप देखिए कि क्या क्या मार्केट में वहाँ रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए और उनको बढ़ाइए। अब उस स्कीम में उन्होंने काफ़ी और चीज़ें भी एनहांस कर दी हैं कि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग अगर आपको बढ़ानी है, आपको रिसर्च करना है अपने टॉपिक को लेकर, उसकी भी फंडिंग वो कॉमर्स मिनिस्ट्री की स्कीम के अंडर दी जा रही है। सतीश जी भी आए थे, MSME की बहुत अच्छी स्कीम्स है इसके अंदर जो आपको एक्सपोर्ट्स में हेल्प कर रही है। प्लस जो आई थिंक रमेश जी ने भी कहा, जो डॉक्टर भूपेंद्र ने कहा, हमको एक अवेयरनेस की बहुत सख्त जरूरत है, जो डीगरा साहब ने भी पॉइंट आउट किया पॉइंट। तो आई थिंक एक अवेयरनेस की बहुत सख्त जरूरत है, जो कंज्यूमर को भी अवेयरनेस होनी चाहिए, जो लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है, ट्रांसपोर्टर है, हर एक को एक अवेयरनेस की बहुत सख्त जरूरत है कि क्योंकि इससे एंड रिजल्ट जो निकलता है, जो लास्ट में पहुंच रहा है सामान, वो बिल्कुल एक्टिव। सर ने कहा जैसे एप्पल है सर, एप्पल आज की डेट में कितना तो हमारा वेस्ट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, अगर हम उसको प्रॉपर्ली रेफ्रिजरेटेड लेके आ सकते हैं। फार्मा में आई थिंक दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दैट रेफ्रिजरेटर प्रॉपर्ली, व्हिच इज गोइंग हियर एंड देयर, डोमेस्टिक एज वेल इंटरनेशनली। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर पेरिशेबल आइटम्स आल्सो। सो आई थिंक कि उसमें पॉलिसीज होनी चाहिए और उस पॉलिसीज की अवेयरनेस जो पहुंचानी है,
जो सुबह भी हम बात कर रहे थे कि उस अवेयरनेस को हमको इंडस्ट्री एसोसिएशंस और ग्लोबल चैम्बर जो है मिलके कैसे हम उसको कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच As far as perishables are concerned, sir, what I generally come across is that refrigerated या ref जैसे बोला जाता है उनको. So those are available, those facilities are available, but obviously at the end of the day everything is economics. So whatever commercials are involved, the first thing is cost. So I think that becomes an aspect. So what I feel is that rather than running the mill, what we should be looking at, or what guidance should be given to the industry as such is how to come up with products which are, I wouldn't use the word niche only, but I would say something which is away from the run-of-the-mill products, and as a result you can gain better. If you want to use these facilities, refrigeration facilities available, ref काफी टाइम से चल रहा है, but उसकी जो cost होती है, not every industry can incorporate that. So I think जैसे हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आ रहा है, so for industries which require this specialized inputs या specialized support, the government should sieve them out, see those capabilities या opportunities and guide them. What do you say about this? I think इसमें if you see initially cold storage जो होते थे बड़ी कैपेसिटी के, अब मल्टी मॉडल वो भी आ रहे हैं उसके अंदर, प्लस स्मॉलर कोल्ड स्टोरेजेस आर कमिंग जो आप अपनी फील्ड में लेके जा सकते हैं, विच थ्रू द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर जो एनसीसीडी है या एनएचपी के थ्रू दे आर प्रोवाइडिंग दोस काइंड ऑफ सब्सिडीज टू यू टू पुट दोस स्मॉलर थिंग्स. सो स्कीम्स आर देयर, प्रॉपर अवेयरनेस हैज टू बी मेड. Correct. लाइक सतीश जी सुबह मॉर्निंग में वाज मेंशनिंग कि हम आप बुलाइए, हम आपको स्कीम समझाते हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है जी. बट आई थिंक समवेयर कहीं ना कहीं हमको एक मेंटल ब्लॉक है. That mental block has to be removed. And that can only happen when we interact more. Yes, I was about to use that word. So interaction will lead to better results, and I think you play a very big role. We play a smaller role at JIA, and I think we should go hand in hand to make sure that this information is passed on to industry, and industry is able to take benefit out of it. Last but not the least, नवीन जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि if I say in short, would you be able to give what is the sunrise industry or sunrise product that new timers or first timers are able to catch on today as far as the export market is concerned, or the export from India is concerned, where we are strong, we can actually work on this sunrise product or sunrise industry? I think so the products which we have in India all are that relevant. So it is just the proper awareness which has to be made, and that awareness can be made through interactive sessions. Right. Ramesh ji was the chair of the logistic committee in PhD. Right. So today morning I was requesting him that he should be more actively involved again. Beautiful. And he mentioned about Continental. Mr. Vipin Vora is again another stalwart in this industry. He is also actively involved in our chamber. Very so we have a very robust logistic and Gati Shakti committee also. They are the first chamber who has started a Gati Shakti forum. Right. Mr. Sandeep Vatwa from JM Bakshi is chairing that in our chamber. So those awareness and meetings definitely will be interacting more with Haryana and other states. Beautiful, beautiful. Gentlemen, I would like to thank you on behalf of everybody present here, and thank you very much for being present here and imparting the knowledge to everybody, and we would look forward for more such sessions. I would like to thank Gunjan ji for this, and we would actually look forward for such sessions coming across. Thank you very much. Thank you. आप सभी सम्मानित अतिथियों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री JN मंगला जी से, श्री मुकुल जी से, प्लीज आप मंच पर आएं और हमारे सम्मानित पैनलिस्ट को सम्मान करें प्लीज. आई रिक्वेस्ट PP सर, प्लीज आप भी सर को ऑनर करें. अभी हमें एक खबर मिली है, लेकिन ये शुक्र है परमात्मा की वो ठीक है. हमारी ऑर्गेनाइजेशन श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, जो बीकानेर से मौजूदा समय में सांसद की टिकट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं. अभी उनका कार का एक्सीडेंट हुआ है, बट ये प्रभु की कृपा है कि वो ठीक हैं पूरी तरह.
तो उनको ज़्यादा चोट नहीं हुई कि हमारा बस प्रार्थना है ईश्वर से कि वो स्वस्थ रहें और बहुत ही जल्दी जीत करके हमारे साथ आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का।